Hello students, welcome to Guidely. Today we will discuss some questions which are based on English language. So let's start our class. Here is our first question. Question number 1 to 7. Below a passage is given and some words are highlighted which may or may not be correct to the context of the passage. You are required to choose the inappropriate word which does not provide meaning to the sentence. That means this is a passage और इस passage में हमारे पास कुछ words given है and these words are highlighted. ठीक है, तो ये words जो है ये highlighted word है. अब highlighted word में ये जो words इसमें given है, इस words may or may not be correct in the context of the passage. तो हमें इसमें से जो options हमारे पास होगा, इस options में से हमें inappropriate word कौन सा है, मतलब which does not provide meaning of the sentence, उसको हमें locate करना है. ठीक है, मतलब searched, there is a bold. अब searched के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इन ऑप्शंस में से देखना होगा जो कौन सी वर्ड इसके साथ एप्लीकेबल नहीं होगा. मीन्स दिस इज नॉट द इनअप्रोप्रिएट वर्ड. इसका जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में से हमें देखना होगा जो इसमें कौन सा वर्ड इनएप्लीकेबल है, इनअप्रोप्रिएट है, वही होगा हमारा आंसर. क्लियर? मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब हम करेंगे, हमें डायरेक्शंस जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए. Below a passage is given and some words are highlighted which may or may not be correct to the context of the passage. You are required to choose the inappropriate word which does not provide meaning to the sentence. You are choose to the inappropriate word. Inappropriate word जो है वो हमें choose करना होगा and which does not provide meaning to the sentence. अच्छा, पहले एक बार पैसेज को पढ़ के देख लेते हैं जो क्या है इसका मीनिंग. International crude oil prices have surged to their highest level in 13 months, led by a strong demand outlook amid a recovery in the global economies and supply disruptions in the Middle East. देखो, surged का मतलब होता है क्या? Move suddenly. जब सडनली बढ़ जाते हैं, सडनली या पावरफुली मूव करते हैं, आइदर अपवर्ड और फॉरवर्ड, तो दिस इज कॉल्ड सर्ज्ड. तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस हैव सर्ज्ड टू देयर हाईएस्ट लेवल. जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ये सर्ज हुआ है टू देयर हाईएस्ट लेवल इन 13 मंथ्स. 13 मंथ्स में सर्ज किया है हाईएस्ट लेवल में, लेड बाय अ स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक अमिड अ रिकवरी इन ग्लोबल इकोनॉमीज एंड सप्लाई डिसरप्शंस इन द मिडिल ईस्ट. तो एक हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया है 13 मंथ्स में, और ये लीड क्या कर रहा है? एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो दिखा रहा है, लीड कर रहा है. एमिड अ रिकवरी इन ग्लोबल इकोनॉमीज एंड सप्लाई डिसरप्शन, साथ में ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक रिकवरी धीरे धीरे जो है वो हो रहा है, और सप्लाई डिसरप्शन, मिडिल ईस्ट में सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर मैनर पे नहीं हो रहा है. It touched the highest since January 8 last year of 60.95 earlier in the session. ये हाईएस्ट में पहुंचा था जनवरी लास्ट ईयर पे, और इसका था क्या? $60.95 था earlier in the session. In a domestic market, crude oil February futures contract rose above 4,400 per barrel level. Last week, oil price has gained around 5%. Oil prices have been rising on the back of a number of improved fundamentals. Hopes of the stimulus package in the US, fears of heightened tension in the Middle East. देखो, heightened का मतलब होता है जो something greater या something stronger. Heightened tension मतलब कोई भी tension जो है in the Middle East, hopes that a stimulus package in the US, fears of heightened tension in the Middle East. Demand growth after easing the lockdown across economies, production cuts from the Organization of the Petroleum Exporting Countries, that is OPEC, and allied producers in the group OPEC Plus, among others. The trend is crude oil will remain positive, said Ajay Kedia, Director Kedia Commodities. तो ये जो पैसेज हमारे पास आया है, ये पैसेज बेसिकली है किसके ऊपर? इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस जो है, जिसका सर्च हुआ है, तो वो उसके ऊपर ये पैसेज बेसिकली है. अच्छा, एक बार नेक्स्ट स्लाइड भी पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में जो गिवन है, द सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइस स्पेल्स बैड न्यूज फॉर इंडिया स्टेट फाइनेंसेस. डेफिनेटली क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाए तो ये इंडिया के लिए बैड न्यूज ही होगा. कमिंग एट अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम disruption caused by COVID.
जिस टाइम हमारी इकोनॉमी ट्राई टू रिकवर हो रहा है, रिकवर करने की कोशिश चल रहा है, और जो डिसरप्ट हुआ था कोविड की वजह से, बैलेंसिंग फिस्कल डेफिसिट is a cause of concern given that India is world's third largest oil importer and consumer. Its top suppliers are Saudi Arabia and Iraq. The Saudi-led coalition fighting in Yemen said late on Sunday intercepted and destroyed an explosive-laden drone fired by an Iran-aligned Houthi group towards the kingdom, state TV reported. इस जगह को देखो एक बार हम समझते हैं. The Saudi-led coalition fighting in Yemen said late on Sunday in intercepted. देखो इंटरसेप्टेड का मीनिंग बेसिकली हम किस तरीके से यूज करते हैं. इंटरसेप्टेड का मतलब होता है कि स्टॉप करना, सीज करना, इंटरप्ट करना. इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड एन एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन fired by Iran aligned Houthi group towards the kingdom, state TV reported, raising fears of the fresh Middle East tensions. The news led to a spike in crude oil prices and fears of supply disruptions. President Joe Biden pushed for the first major legislative achievement of his term on Friday, turning on the bipartisan group of local officials to help on his 1.9 trillion coronavirus relief plan. The stimulus is expected to bolster economic growth. देखो बॉलस्टर वर्ड जब हम यूज करते हैं, बॉलस्टर मतलब होता है कि सपोर्ट देना, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट देना, एंड हेल्प मिलियन ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर, और ताकि मिलियन ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर जो है वो उसको हेल्प हो जाए. तो इसमें जो वर्ड्स हमारे पास बोल्ड में लिखा है, नाउ वी हैव टू गो फॉर द ऑप्शंस, एंड हमें देखना होगा तो इसमें से कौन सा आंसर जो होगा ऑप्शंस में, कौन सा आंसर करेक्ट नहीं होगा. दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो चेक करते हैं एक बार ऑप्शन को. द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इनएप्रोप्रिएट टू द वर्ड सर्च. मतलब सर्च वर्ड का जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या है. सर्च की मीनिंग मैंने पहले बताई थी. जो सर्च का मीनिंग होता क्या है, जो मूव सडनली एंड पावरफुली. ठीक है, सर्च का बेसिक मीनिंग होता क्या है, मूव पावरफुली. सर्च का मीनिंग है क्या, मूव suddenly and powerfully, forward और upward. तो अब देखो सर्च का जो सिनोनिमस वर्ड है वो क्या है. एक तो है ascertain, this is the appropriate word. सेकंड जो है that is blaze. Blaze is also move suddenly. अच्छा, एक्रिवल, ये भी सेम मीनिंग कैरी करते हैं. लेकिन जो प्लमेटेड का मतलब होता है फिल सडनली या फॉल सडनली, फॉल सडनली एंड क्विकली. और जो स्पॉट, ये भी इसका सिनोनिम्स है. तो दैट्स मीन ये जो वर्ड है प्लमेटेड, ये वर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा. बाकी जो ऑल अदर ऑप्शंस आर मीनिंग ऑफ सर्च्ड and plummeted is inappropriate to the given word. So hence the answer will be D, because ascertain, blaze, accurate and spot, these all are the synonyms. लेकिन plummet जो है ये होता है कि fall suddenly and quickly, just opposite word है. अच्छा, which of the following words is inappropriate to heightened. तो heightened की मीनिंग मैंने पहले बोला था और एक बार लिख लेते हैं. जो something greater, something greater or stronger, something greater or stronger. तो इसके सिनोनिम्स जो है दैट इज क्या है, reinforce सिनोनिम्स है, exalt ये भी सिनोनिम है, augment ये भी सिनोनिम्स है, extend ये भी सिनोनिम है. तो these four words are synonyms of heightened. heightened मतलब होता है कोई भी चीजों को ग्रेट करना, बड़ा करना, स्ट्रॉन्ग करना. सो डेफिनेट ऑपोजिट वर्ड होगा क्या, टू बिकम लेस, दैट इज क्या, लेसन. लेसन का मतलब होता है क्या, टू बिकम लेस. So all other options जो है, all other options and meaning of heightened, and lesson is an inappropriate word to the given options. That's why our answer will be E. अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखो, which of the following words an inappropriate word of disruption. Disruptions का मतलब होता है disturbance, disturbance, or you can say that problems.
disturbance या problems which interrupt an event. डिस्टर्बेंस या कोई प्रॉब्लम्स जो इवेंट को इंटरप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली डिसरप्शंस का जो सिनोनिम्स है वो इंटरप्शन होगा. अच्छा, सेपरेशन, ये जो है ये भी इसका आंसर होगा. आई मीन टू से इसका सिनोनिम्स होगा. अच्छा, रकस, रकस भी होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, डिस्टर्बेंस. अच्छा, इंटरफेरेंस डेफिनेटली है. बट ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग काम. जब ना हम शांत हो जाते हैं तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग काम, जो शांत हो जाने का जो क्वालिटी है वो होता क्या है, ट्रैंक्विलिटी. तो देयरफॉर द आंसर विल बी ई. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है दैट इज द वर्ड ऑफ कोalition. अच्छा, कोalition होता क्या है, अ गवर्नमेंट. यू नो दैट कोalition इज अ गवर्नमेंट. कोalition गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर. मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी मिलाकर जब काम करके जब कोई गवर्नमेंट को बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड कोalition. तो कोalition के लिए सिनोनिम्स जो है डेफिनेटली एफिलिएशन, ये भी ठीक ठाक है, मतलब कोalition का सिनोनिम्स है. कंसोर्टियम, ये भी सिनोनिम है. एमलगामेशन, मिक्स्ड हो जाना, ये भी है. पार्टनरशिप, ये भी है. लेकिन डिटैचमेंट विल बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो डिटैचमेंट का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ separation. That's why D will be the correct option. I mean to say inappropriate option. अच्छा, question number 5 जो है, which of the following word is inappropriate to the word of intercepted. Intercepted का मतलब होता है to stop. To stop या seize कर देना. We can also say interrupt करना. Progress को seize करना, progress को interrupt कर देना, progress को stop कर देना. This is called intercepted. तो intercepted के लिए देखो obstruct, इसका synonyms है. Hinder, obstacle है, ये भी synonyms है. लेकिन assist, this is not the appropriate word. This is inappropriate. Assist मतलब होता है कि help करना, to help. And impede, इसका मतलब भी stop, seize करना, obstruct करना. And the expropriate, ये भी इसका synonyms है. तो definitely the answer will be C, assist, to help. तो these are called words. इसमें हमारा ना एक तो vocab जो है वो improve हो जाएगा बहुत ज़्यादा. Synonyms और antonyms मतलब वही पुरानी types of questions ना करके new type of questions इस questions के साथ करने से होता क्या है, बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो हम सीख लेते हैं. जैसे कि देखो कोalition के लिए एफिलिएशन, कंसोर्टियम, एमलगामेशन, पार्टनरशिप, दिस ऑल आर द सिनोनिम ऑफ कोalition. तो ये जो वर्ड्स है ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, साथ साथ कॉम्प्रिहेंशंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस जितनी बार आएगा उतनी हमें ना प्रैक्टिस करना चाहिए. यानी वर्ड को आप लोग थोड़ा सा नोट करके रखो, नोट डाउन करके इसको पढ़ो. जितनी आप लोग इसको नोट करोगे, मतलब एवरी डे. जैसे कि इंटरसेप्टेड का मतलब होता है क्या, स्टॉप करना, रोकना, सीज कर देना. तो इस सीज के लिए जो सिनोनिम्स है दैट इज क्या है, एक हो गया ऑब्स्ट्रक्ट, एक हो गया हिंडर, हिंडरेंस, इम्पेड, एक्सप्रोप्रिएट, दिस ऑल आर द सिनोनिम्स. तो ये सिनोनिम्स को भी हमें थोड़ा सा मतलब आई मीन उसे जो पढ़ना चाहिए, मेमोराइज रखना चाहिए फॉर हमारी फर्दर क्वेश्चंस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आए हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इनअप्रोप्रिएट इन द लेजिस्लेटिव. अब देखो लेजिस्लेटिव क्या होता है. जो लेजिस्लेटिव होता है कि जो कनेक्टेड विद द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज, जहाँ पे ना लॉ बनते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव. तो जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे लॉ बनते हैं, यू नो दैट देयर इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो कनेक्टेड विद, मैं लिख देती हूँ मीनिंग, जो कनेक्टेड विद द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज. अच्छा, जुडिशियल डेफिनेटली रिलेटेड वर्ड, गवर्नमेंटल डेफिनेटली रिलेटेड वर्ड, कांग्रेशनल डेफिनेटली रिलेटेड वर्ड, एंड डिक्रीइंग डेफिनेटली रिलेटेड वर्ड. लेकिन इलिसिट का मतलब होता है इलीगल. तो इलीगल, तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा.
इलिसिट होगा इसका आंसर। तो बाकी जो ऑप्शंस है ना वो सिनोनिम्स है। इसका सिनोनिम्स मींस एप्रोप्रिएट वर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आ रहा है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इनएप्रोप्रिएट टू द वर्ड बोल्स्टर। बोल्स्टर का मीनिंग होता है क्या, सपोर्ट करना। इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेंथन और सपोर्ट, स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, रीइंफोर्स डेफिनेटली है, बट ऑब्स्ट्रक्ट इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट इनएप्रोप्रिएट वर्ड होगा। अपहोल्ड सिनोनिम्स है, सस्टेन सिनोनिम्स है। तो देयरफॉर द आंसर हमारा होगा क्या, बी, दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट। अच्छा, these are the 7 questions which are based on vocabularies. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे जो गिवन है दैट इज क्या, जो डायरेक्शंस 8 to 12, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सेंटेंस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सम पार्ट्स हैव एन एरर इन इट, आइडेंटिफाई द पार्ट्स विदाउट एनी एरर्स। बी वेरी केयरफुल स्टूडेंट्स, हमें इसमें एरर्स को लोकेट नहीं करना, हमें इसमें विदाउट एरर्स पे जो पार्ट है ना वो हमें लोकेट करना है, दैट विल बी आवर आंसर। इफ होल सेंटेंस इज एरर फ्री, अगर कोई भी एरर नहीं है तो ई विल बी आवर आंसर। तो कौन सी पार्ट हमारा एरर फ्री है वो अब हमें देखना पड़ेगा, लेकिन एरर फ्री को देखने के लिए डेफिनेट करके हमें एरर्स जो कौन सा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। दिस आर द न्यू पैटर्न ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स ना डिफरेंट पैटर्न पे होते हैं, तो हमने कोशिश यही करते हैं जो हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, हर पैटर्न जो है आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो ये भी एक पैटर्न है जहाँ पे हमें लोकेट करना होगा जब विदाउट एनी एरर्स, जिस पार्ट में कोई भी एरर्स नहीं होगा। अब देखो, even though more than a quarter century has elapsed since a constitution were amended to make urban and rural local bodies a self-contained third tiers of governance, it is often agreed by experts that there is inadequate devolution of powers to them. पहले एक बार चेक करते हैं। अच्छा, चाहे सेंटेंस ना जितनी बड़ी हो, जितनी भी कुछ हो, मतलब डिफिकल्ट मीनिंग जो है वो चाहे जिसके जिसके ऊपर हो जाए, बेसिक पैटर्न विल बी द सेम ऑफ दिस। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर एरर्स हो सकता है, प्रीपोजिशंस के ऊपर हो सकता है, कंजंक्शंस के ऊपर हो सकता है, नाउन प्रोनाउन के ऊपर हो सकता है, तो बेसिक पैटर्न विल बी सेम। अच्छा, चेक करते हैं। जो इवन दो मोर देन, देखो मोर देन हम कहाँ पे लगाते हैं, मोर के साथ देन यूज होते हैं जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे। even though more than a quarter century has elapsed, quarter century has elapsed, quarter century is a singular number, therefore हमने has यूज किया, has के साथ verb का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, elapsed since। since यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है, since the constitution were amended। देखो, constitution is a singular number, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंगुलर नंबर, इसके साथ हमने वेयर कर दिया, तो वेयर तो नहीं होना चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना होता है, तो इस जगह पे देखो वेयर हो गया, वेयर नहीं होगा, इसमें होगा क्या, वाज। amended to make urban and rural local bodies। तो बी पोर्शन जो है वो रॉन्ग है, लेकिन ए पोर्शन पे कोई भी एरर्स हमें नहीं मिला। जो चीज मतलब आई मीन टू से द क्राइटेरियाज आर कंप्लीटली फुलफिल्ड हियर। The Constitution was amended to make urban and rural local bodies a self-contained third tiers। देखो, a self-contained मतलब ये सिंगुलर नंबर है, a self-contained third tiers नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टायर होना चाहिए। तो मतलब सी पोर्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। self-contained third tier of governance, it is often agreed by experts that there is inadequate devolution of powers to them। agreed by experts, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। दैट्स मीन एरर पार्ट जो है वो हो गया हमारा बी और सी, और ए और डी को पोर्शन जो है इसमें कोई भी एरर्स नहीं हुआ। तो ए और डी पे कोई भी एरर नहीं है, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए क्या, ए एंड डी। सो दैट विल बी सी। ए एंड डी है एरर फ्री पार्ट, हमें देखना है क्या, विदाउट एनी एरर्स, द पार्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट्स where there will be no any error. Let's move to question number 9. The mass exodus of migrant laborers in foot and the subsequent running of Shramik Express trains by the Ministry of Railways in the middle of COVID-19 lockdown and the logical challenge in dealing with China figured as a recurring theme as the Lok Sabha took up the debate on demand of grants from the railways.
अच्छा, अब इसको पहले एक बार हम चेक करेंगे। द मास एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट, एक्सोडस मतलब होता है कि जो मास पीपल जब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सोडस, जो कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। तो हम सबको ही हमें पता है जो लेबर्स जो थे वो बाई फुट जो है ऑन फुट जो है वो आ गए थे, क्योंकि कोई भी ट्रेन नहीं चला था, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था लॉकडाउन की वजह से। तो मास एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबर, ये जो इन फूड है, यही हो गया फर्स्ट रॉन्ग। अगर हमने पैदल चलते हैं, मतलब देखो वन पॉइंट को ध्यान रखना, अगर हमने ट्रैवल करते हैं कोई भी मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग मोड से, जैसे कि बाय एयर, बाय ट्रेन, कहीं पे अगर समवेयर हम जा रहे हैं, बाय एयर हो गया, बाय ट्रेन हो गया, बाय टैक्सी हो गया, बाय कार हो गया। लेकिन अगर कोई पैदल जाए तो ये हो जाता है ऑन फुट। तो इन फुट जो है, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, इन फुट इज नॉट द राइट प्रीपोजिशन। अ मास एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स इन फुट नहीं होगा, इट विल बी ऑन फुट। ऑन फुट एंड द सब्सिक्वेंट running of Shramik Express trains by the Ministry of Railways in the middle of COVID-19 lockdown and the logistic challenges। देखो and the logistic challenges मतलब एक तो चैलेंज नहीं था ना, तो इसमें challenges था, एक से ज्यादा था। तो रनिंग श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जो है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिडिल कोविड-19 लॉकडाउन, इस पोर्शन तो ठीक ठाक है, बट अगेन देखो सी पोर्शन पे एंड द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, एक नहीं था, क्योंकि इससे आना लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिकल चैलेंज इसमें ना करके हमें करना है क्या, लॉजिस्टिक चैलेंजेस। Logistical challenges in dealing with China figured as a recurring theme as the Lok Sabha took up the debate on demand of grants from railway। तो इस पोर्शन पे देखो grants from, grants के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो वो होता है for, it will be not from, grants for the railways, grants for the railways। तो दैट्स मीन इस सेंटेंस में देखो बी पोर्शन छोड़कर बाकी सारे ही रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट सेंटेंस तो हमारा ऐसा बनेगा, द मास एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स ऑन फुट एंड द सब्सिक्वेंट रनिंग ऑफ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द मिडल ऑफ द COVID-19 लॉकडाउन and logistical challenges in dealing with China figured as a recurring theme as the Lok Sabha took up the debate on demand of grants for the railways। So ए पोर्शन भी रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, तो आवर आंसर विल बी ओनली बी। ओनली बी इज द एरर फ्री पार्ट है, तो आंसर हमारा होगा ओनली बी, सो दैट्स वाई बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे जो बोला है दैट इज है क्या, द जजमेंट इक्वल्स द आर्ग्यूमेंट्स दैट चाइल्ड राइट्स activists has been making for year by ignoring the natural sexual tendencies of adolescents। POSCO can and does become tool for the persecution of young people and consenting sexual relations। देखो फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट पोर्शन पे जो एरर है, द जजमेंट इक्वल्स द आर्ग्यूमेंट दैट चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट इसमें प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो डेफिनेटली वर्ब जो होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, तो इसमें हैज बीन ना करके हमें करना है क्या, हैव बीन। द जजमेंट इक्वल्स द आर्ग्यूमेंट दैट चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैव बीन, तो फर्स्ट पोर्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। मेकिंग फॉर ईयर्स बाय इग्नोरिंग, मेकिंग फॉर ईयर्स, इट विल बी नॉट 1 ईयर, ईयर की बात नहीं हुआ, इट विल बी ईयर्स, मेकिंग फॉर ईयर्स बाय इग्नोरिंग, जो लॉट ऑफ ईयर से ये इग्नोरिंग हो रहा है, तो इसमें ईयर ना करके हमें करना चाहिए था क्या, ईयर्स। मतलब ए पोर्शन भी रॉन्ग हो गया, बी पोर्शन भी रॉन्ग है। ईयर्स बाय इग्नोरिंग द नेचुरल सेक्सुअल टेंडेंसीज of adolescents, POSCO can and does become, देखो can is a helping verb and does is also helping verb, और इसके साथ became हो गया, does became ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, can और does के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है, it will be not became it will be become, तो became ऑप्शन हो गया, that is not the right option, हमें करना है क्या, become। टूल फॉर द परसिक्यूशन, ठीक है, तो सी पोर्शन भी रॉन्ग हो गया, ऑफ यंग पीपल इन कंसेंटिंग सेक्सुअल रिलेशंस, ऑफ यंग पीपल इन कंसेंटिंग सेक्सुअल रिलेशंस, तो दैट्स वाई जो सी पे जो सी डी पोर्शन जो है इसमें कोई भी एरर नहीं है, ऑफ यंग पीपल इन कंसेंटिंग सेक्सुअल रिलेशंस, तो डी पोर्शन इज राइट, लेकिन बाकी सारा जो पोर्शन है वो रॉन्ग हो गया। यू नो दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है, तो पॉस्को कैन एंड डज
become tool for persecution of young people in consenting sexual relations. तो इस जगह पे कोई एरर है नहीं. So that's why एरर फ्री पार्ट जो होगा वो होगा ना हमारा डी. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. The center has informed a parliamentary panel that a stand-alone project to build a critical along the border with China in Ladakh is going on. अब देखो, the center is a singular number, has informed, इसलिए has यूज हुआ. singular noun के साथ हमने singular verb यूज किया. The center has informed a parliamentary panel, एक parliamentary panel inform किया that a stand-alone project to build a critical road along the border with China in Ladakh is going on. तो सेंटर जो है सिंगुलर नंबर, हैज इन्फॉर्म जो है वो सिंगुलर पोर्शन पे चला, और चाइना इन लद्दाख जो है ये भी सिंगुलर पॉइंट में चल रहा है. तो दैट्स वाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होगा दैट इज एब्सोल्युटली एप्लीकेबल वर्ड. तो देयरफॉर इसमें हमारे पास कोई भी एरर्स नहीं है. आई मीन टू से द सेंटेंस इज कंप्लीटली एरर फ्री. तो दैट्स वाई द आंसर विल बी नो एरर. Question number 12. The government on Monday informed the Lok Sabha that 2000 currency notes has not been printed in the past 2 years, even as the quantum of the highest denomination currency note has come down. अच्छा, अब इसको चेक करो. The government on Monday informed that Lok Sabha, the government of Monday informed the Lok Sabha that 2000 currency notes इसमें given है. जब ये notes होगा तो इसमें has नहीं होगा, notes के साथ हमें have लेना पड़ेगा. Have not been printed in the past, मतलब फर्स्ट पोर्शन जो है इसमें तो कोई एरर है नहीं. द गवर्नमेंट ऑन मंडे इन्फॉर्म द लोक सभा, इसमें कोई एरर नहीं है. लेकिन सेकंड पार्ट जो है दैट 2000 करेंसी नोट्स हैव नॉट बीन प्रिंटेड इन द पास्ट, दिस इज द रॉन्ग पोर्शन. 2 years even as quantum of the highest, 2 years even as the quantum of the highest denomination currency note has, देखो came कर दिया. has के साथ हमें verb का थर्ड फॉर्म लेना होता है, और come का थर्ड फॉर्म कम ही होता है. come came come. ठीक है, मतलब V1 अगर कम होगा तो V2 होता है क्या, came, और V3 अगेन होता क्या है, come. तो come came और come, तो इसमें came नहीं करना, हमें करना है क्या, come. So that's why the answer डी पोर्शन जो है ये भी रॉन्ग हो गया, और ए पोर्शन जो है ये भी रॉन्ग हो गया. तो अब हमें सॉरी, ए पोर्शन करेक्ट है, बी और डी जो है वो रॉन्ग हो गया. तो बी और डी रॉन्ग हो गया, मतलब आंसर हमारा होना चाहिए क्या, ए और सी, और ए और सी मतलब आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पे जो गिवन है दैट इज है क्या, 13 to 16 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड और फ्रेज हैज बीन हाइलाइटेड. कुछ वर्ड्स जो है वो हाईलाइट कर दिया गया है, वर्ड और फ्रेज. फाइंड द एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड चूज ई एज योर आंसर. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13. Amit Shah on Monday broke his silence on the injury of West Bengal Chief Minister and wished her speedy recovery, but asked how she could not feel the pain of the families of 130 BJP workers killed in political violence during her regime. तो ये जो अंडरलाइन पोर्शन हमारे पास है, इस अंडरलाइन पोर्शन को हमें करेक्ट करना पड़ेगा. इफ वी थिंक दैट देयर इज रॉन्ग, तो वी हैव टू लोकेट वेयर द एरर इज, एंड इफ वी थिंक दैट देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो आवर आंसर वी हैव नन ऑफ द अबव. बट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना, दिस अ वेरी नॉमिनल एरर्स इसमें होते हैं, और ग्रामेटिकल एरर्स ही होते हैं. तो देखो, अमित शाह ऑन मंडे ब्रोक हिज साइलेंस, फर्स्ट टेंस है. अमित शाह ऑन मंडे ब्रोक हिज साइलेंस ऑन इंजुरी ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड विश्ड, फर्स्ट टेंस चल रहा है, हर स्पीडी रिकवरी बट आस्क्ड हाउ शी कुड नॉट फील. अच्छा, इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है, broke his silence on injury of West Bengal Chief Minister and wished her speedy recovery but asked whom she could not, definitely not. इसका मतलब क्या हुआ, जो अमित शाह मंडे में अपना साइलेंस को ब्रोक किया, और वो ब्रोक करके उन्होंने थोड़ा सा विश भी किया, किसको ना, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर को विश भी किया, और विश करके उनका स्पीडी रिकवरी जो है वो विश किया. लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन भी किया उन्होंने. क्वेश्चन में है कि हाउ मतलब कैसे, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग देखो, जो क्यों she could not feel the pain, why she could not feel the pain of families of 130 BJP workers killed in political violence during her regime. तो इस जगह पे देखो हाउ ना होकर, हाउ मतलब कैसे, तो एक्चुअली हमें चाहिए क्या, why, क्यों.
why she could not feel the pain of the families of 130 BJP workers killed in political violence during her resign. तो इसमें how से मतलब करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्या, why. तो देखो इसलिए थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, जो broke his silence on injury of West Bengal chief minister and wished her speedy recovery but asked why she could not, क्यों उन्होंने could not feel नहीं किया था pain of the families and 130 BJP workers killed in political violence during her resign. बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, बी ऑप्शन पे देखो पूरा बोला कि आस्क्ड एंड वेयर तो प्लेस के लिए यूज होता है, हमें इसमें तो प्लेस वाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्यों वाली इंफॉर्मेशन. सो दैट्स व्हेन इट इज क्लियर टू अस, जो ओनली 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और इन 3 मतलब इसमें आंसर क्या होगा, सी. ठीक है. अच्छा, जब हमने मतलब ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जो पार्ट हम जब करेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स एक चीज को 100% ध्यान रखना, इसमें जो एरर्स होते हैं ना, ये एरर्स कंप्लीटली पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंस इसके ऊपर बेस करके होते हैं. तो एक एक वर्ड की तरफ ध्यान रखो, जैसे कि मान लो इसमें ब्रोक हिज साइलेंस ऑन द इंजरी ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड विश्ड, अगर ना करके अगर विल विश हो गया या विशेस हो गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टेंस का जो सेंटेंस का जो पैटर्न चल रहा है वो हमारा कंप्लीटली पास्ट टेंस में चल रहा है. जैसे कि ब्रेक का पास्ट टेंस है ब्रोक, अच्छा विश्ड का पर्सन विश्ड हो गया, अच्छा आस्क्ड हो गया, तो ये पूरी पास्ट टेंस पे चल रहा है. तो पास्ट टेंस की जो फॉलो अप है, मतलब आई मीन टू से जो पास्ट टेंस का जो कंटिन्यूएशन होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा. तो इस जगह पे ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीटली ग्रामर बेस्ड होते हैं, ग्रामर को अगर एक बार फॉलो अप करके करना. और ये जो हाउ WH वर्ड जो है ना, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूजेस इसमें हमें करना होता है. जो हाउ शी कुड नॉट फील, कैसे फील नहीं किया, ये ना करके हमें बोलना है क्या, क्यों उन्होंने फील नहीं किया, व्हाई शी कुड नॉट फील द पेन ऑफ द फैमिलीज ऑफ 130 BJP वर्कर्स killed in political violence. Next question, question number 14. Mrs. Sanghvi said the greater threat to the birds was from their diminishing habitat, flattened for agriculture. Mrs. Sanghvi said that the greater threat. अच्छा, अब देखो, Mrs. Sanghvi said that the greater threat मतलब पहले जो threat था उससे ज्यादा threat हुआ. The greater threat to the birds was from. Threat क्या है, singular number, तो इसलिए हम इसके साथ was को use किया. Greater threat to the birds was from their diminishing habitat and flattened for agriculture. तो इस सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि greatest threat. ग्रेटेस्ट हम इसमें नहीं देंगे, और ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बर्ड्स वाज फ्रॉम ग्रेटेस्ट. इसके बाद दिया है ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बर्ड्स वेयर फ्रॉम. थ्रेट सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हमने वेयर का यूज करना ही नहीं, क्योंकि इसमें थ्रेट की अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना है, बर्ड्स की अकॉर्डिंग नहीं. ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बर्ड्स वेयर फ्रॉम देयर डिमिनिशिंग. एक्चुअली ग्रेटेस्ट हम करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, इसमें सुपर बड़ी बात इसमें नहीं हुआ. इसमें बोला कि जो ग्रेटर थ्रेट, पहले जो थ्रेट था उससे ज्यादा है. मिस्टर संघवी सेड द ग्रेटर थ्रेट टू द बर्ड्स वाज फ्रॉम देयर डिमिनिशिंग हैबिटेट. सो दैट्स व्हाई इसमें इस सेंटेंस में देखो कोई भी इंप्रूवमेंट की नेसेसिटी हमारा नहीं है, तो देयरफॉर द आंसर विल बी नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. President Joe Biden on Sunday passed an opportunity to join other Democrats calling for the resignation of New York Governor Andrew Cuomo, who is under investigation after multiple allegations of sexual harassment. This is the bold portion जो हमें correct करना पड़ेगा, देखना है जो whether it is a right sentence or wrong. अब देखो इसमें जो दिया है ना, President Joe Biden on Sunday passed an opportunity to join. पास्ट एंड अपॉर्चुनिटी जो है ना वो हमें नहीं करना. एक्चुअली क्या होता है, पास्ट इज अ रॉन्गली यूज्ड. हमें इसमें करेक्ट यूज जो करना होगा वो होता है कि पास्ट अप एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अदर डेमोक्रेट्स. अच्छा, एक बार ऑप्शन को चेक करो. देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि पास्ट अप एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अदर डेमोक्रेट्स, पास्ट के साथ इसमें आप यूज हुआ है. सेकेंड ऑप्शन पे देखो पास्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइनिंग, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि पास्ट के साथ इसमें आप यूज नहीं हुआ. और जो थर्ड ऑप्शन पे है पास्ट अप एंड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइनिंग, तो ये भी सेम ऑप्शन हो गया कि टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट दे दिया है, तो टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं करना चाहिए था. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन संडे passed up an opportunity to join other Democrats calling for the resignation of New York Governor Andrew Cuomo, who is under investigation after multiple allegations of sexual harassment. So answer हमारा होगा क्या, passed up an opportunity to join other Democrats calling for the resignation. मतलब I mean to say answer हमारा होगा one is the answer, तो one मतलब A will be the correct option.
तो एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, पास्ट पास्ट अप एंड अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं ना वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। प्रीपोजिशन का जो चैप्टर्स होते हैं मैं तो बोलूंगी आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने से होगा क्या ना, एक बार मतलब लॉट ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं जिसका मीनिंग हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जैसे देखो पास अप का मतलब होता है टू लेट गो बाय विदाउट एक्सेप्टिंग। मैंने इसका मीनिंग भी बता देती हूँ। पास्ट अप का मतलब होता है टू लेट गो by without accepting or taking advantage. Or taking advantage. This is called passed up. So that's why passed up an opportunity to join other Democrats calling for resignation, जो इसको जाने दिया, resignation call किया for New York Governor Andrew Cuomo, who is under investigation after multiple allegations of the sexual harassment. So that's why it will be passed up. और simply passed करने का मतलब क्या है, जो side by side चले गए, ये नहीं है, passed up करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday said efficient management and uses of the latest technology by the private sector will help unlock the real value from CPSEs undergoing strategic sales and bring much higher dividends for the economy. The Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday said efficient management and uses of the latest technology. अच्छा देखो, एक चीज को हम समझते हैं, जो uses of latest technology होते हैं ना, use of latest technology होता है। Why it will be applicable? Uses, definitely it will be the wrong option. Uses ना करके हमें करना है कि use of latest technology. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday said efficient management and use of latest technology का use by the private sector will help unlock the real value for CPSE undergoing strategic sale. जो real value देगा, किसके लिए देगा ना, CPSE का undergoing strategic sale. तो इसमें देखो from is a wrong option. from को ना करके हमें इसमें for करना चाहिए था, और इसमें देखो uses ना करके इसमें use करना चाहिए था। तो उसी अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या गिवन है, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड यूजेस, तो मैंने पहले ही बोला जो यूजेस वाली ऑप्शन इसमें नहीं करेंगे। अब देखो सेकंड ऑप्शन पे दिया है कि यूज्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन, यूज्ड नहीं करना, पास्ट टेंस हो गया। लेकिन थर्ड में देखो एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय द प्राइवेट सेक्टर विल हेल्प अनलॉक द रियल वैल्यू ऑफ CPSEs undergoing. तो CPSEs value of, extremely sorry students, value for नहीं, value of CPSEs, value of. तो value of CPSEs undergoing strategic sales and bring much higher dividend for the economy. Value of. तो वैल्यू ऑफ के लिए हमें ऑप्शन हमारा थर्ड होना चाहिए, और थर्ड मतलब आंसर होगा हमारा सी, वैल्यू ऑफ। तो सो करेक्ट सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, जो निर्मला सीतारमन सेड on Monday said efficient management and use of the latest technology by the private sector will help unlock the real value of CPSEs undergoing strategic sale and bring much higher dividend for the economy. So answer will be C. Question 17 पे चलते हैं। Question number 17. It is an outfit. देखो क्वेश्चन नंबर 17 to 20 इसमें दिया है, जो in each of the following question 3 blank space are given. Fill in the blank spaces with the suitable alternatives given below. ठीक है, मतलब इसमें 3 गैप है, ट्रिपल फिलर्स, और 3 गैप के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस है, और 6 ऑप्शंस को हमें ग्रुप वाइज यूज करना पड़ेगा। It is an outfit which has its strong point such as dash and dedicated supervisor with a sound dash of the law and of unquestioned dash. It is an outfit which has its strong points such as, strong point क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है indolence, सेकेंड ऑप्शन है knowledge, नेक्स्ट ऑप्शन है क्या inoculate, talented, reality, integrity. It is an outfit, ये एक outfit है which has its strong points, आउटफिट का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सच एज डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेटेड जब होगा इसमें आंसर देखो, एक ऑप्शन हमारे पास डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड के आगे एंड है, तो एंड के आगे
डेफिनेटली ईडी वाला फॉर्म ही हमें देना होगा, क्योंकि पैरेललिज्म में क्या होता है, जब हमने एंड को यूज करते हैं, एंड की लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों ना सेम वर्ड होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑलवेज सेम इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करते हैं, तो सेम इंफॉर्मेशन के साथ ज्वाइन करते हैं, तो दैट्स वाई देखो इसमें डेडिकेटेड है तो इसके आगे हमें ईडी वाला फॉर्म ही देना पड़ेगा, तो ईडी वाला फॉर्म इसमें कौन सा है, टैलेंटेड। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, सच एज टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड सुपरवाइजर्स विद साउंड, ठीक है, डेडिकेटेड और टैलेंटेड सुपरवाइजर जिसके पास साउंड डैश ऑफ द लॉ, किस चीज क्या क्या चीज होना चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ द लॉ, लॉ का नॉलेज जो है वो होना चाहिए, साउंड नॉलेज, साउंड नॉलेज ऑफ द लॉ एंड ऑफ अनक्वेश्चनड, एंड ऑफ अनक्वेश्चनड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि क्वालिटी, और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट क्वालिटी है, तो लॉ एंड ऑफ अनक्वेश्चनड इंटीग्रिटी, तो integrity will be the last word. So that's mean it is an outfit which has strong points such as talented and dedicated supervisor with a sound of knowledge of the law and of unquestioned integrity. तो पहले होना चाहिए D, that is क्या है, talented, इसके बाद होना चाहिए knowledge, that is B, और integrity, that will be F. तो D, E, F will be the correct option. तो D, E, F को हमारा आंसर होगा, तो D, B, F किसमें है, D. So therefore the answer will be D. Question number 18 पे चलते हैं. The United States dash and then immediately suspended a dash 25% tariff rate on over 2 billion of imports from 6 countries, including India, signaling Washington's intent to act dash on its long-held growth and with these nations for their digital service taxes primarily impacting Silicon Valley tech giants. अच्छा, United States dash and then immediately suspended. तो कौन सी ऑप्शन, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है अनाउंसिंग, सेकंड ऑप्शन है होपिंग. अच्छा देखो होपिंग का जो मीनिंग है एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगी. होपिंग का मतलब होता है वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, और एक वर्ड भी है प्यूनिटिवली, प्यूनिटिवली मतलब होता है कि इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग या और एमिंग एट पनिशमेंट. इन्वॉल्विंग और एमिंग एट पनिशमेंट, ठीक है, तो प्यूनिटिवली दैट इज कॉल्ड पनिशमेंट. अच्छा, नेक्स्ट है पास्ट, देन है अप्रूव्ड और देन है डिस्कार्डेड. तो देखो आप एक बार चेक करें, द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड, डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड, तो ए आंसर पहले होना चाहिए वर्ड अनाउंस्ड, एंड देन इमीडिएटली सस्पेंडेड अ डैश 25% टैरिफ, सस्पेंड करना, सस्पेंडेड अ whooping 25% tariff rate on over 2 billion of imports from 6 countries including India, signaling Washington's intent to act. तो दैट्स मीन देखो सेकेंड वर्ड पे हमारे पास आना चाहिए क्या, whooping, ठीक है, whooping, signaling Washington's intent to act punitively on its long held growth with these nations for their digital services taxes primarily impacting Silicon Valley tech giants. तो act punitively. तो A, B and C that will be the correct option. तो right option United States announced, United States announce किया and then immediately suspend, इसके बाद immediately suspend भी किया a whopping 25% tariff rate on over 2 billion of imports from 6 countries including India, signaling Washington's intent to act punitively on its long-held growth with these nations for their digital service taxes primarily impacting Silicon Valley tech giant. I hope meaning is completely clear. तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज, एक तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड ये है पॉइंट नंबर 1, उससे भी बड़ी बात है क्या, ये जो सेंटेंस हमारे पास गिवन है ना, इस सेंटेंस का ना अल्टीमेट जो एसेंस है वो समझना, समझने के बाद ही इसको एप्लीकेबल करो, क्योंकि अप्रूव्ड भी इसमें गिवन है, डिस्कार्डेड भी इसमें गिवन है. अप्रूव्ड इसमें कभी भी हम नहीं करेंगे क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव नहीं किया, अनाउंस किया, उसके बाद ही इमीडिएटली सस्पेंड किया. तो जो सस्पेंड करेगा मतलब अनाउंस करने के बाद वो सस्पेंड किया. तो ए बी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो आंसर हमारा होगा क्या, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19.
The chief minister spoke to Home Minister Amit Shah and he was dash that no refugee will be dashed to Myanmar, but he gave this assurance about those who have already dashed and now MHA has sent a letter to send them back, the MP said. The chief minister spoke to home minister. Chief minister spoke किया home minister के साथ अमित शाह and he was स्पोक करने के बाद बोलने के बाद उन्होंने क्या किया ही वॉज देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है आस्क्ड अलाउ एडमिटेड प्रॉमिस्ड डिपोर्टेड एंटर्ड ही वॉज प्रॉमिस्ड चीफ मिनिस्टर स्पोक टू होम मिनिस्टर अमित शाह चीफ मिनिस्टर अमित शाह के साथ बात किया एंड ही वॉज प्रॉमिस्ड दैट नो रिफ्यूजी विल बी कोई भी उन्होंने प्रॉमिस किया नो रिफ्यूजी विल बी तो विल बी नो रिफ्यूजी विल बी डिपोर्टेड टू म्यांमार देखो डिपोर्ट करने का मतलब होता है कि टू कैरी अवे डिपोर्ट का मतलब होता है क्या टू carry away. The chief minister spoke to home minister Amit Shah and he was promised. First option हमें देना है क्या D. That is क्या है he was promised that no refugee will be deported to Myanmar. कोई भी refugee म्यांमार में डिपोर्ट नहीं होंगे. Deported to Myanmar. But he gave the assurance about those who have already entered and now MHA has sent a letter to send them back, the MP said. Those who have already entered. तो second option पे हो गया हमारा deported और third में क्या होना चाहिए entered. इसमें होगा क्या entered. So D, E and F will be the correct option. तो D, E और F के लिए हमें आंसर कौन सा देना चाहिए C. And let's move to the question number 20. Last question, that is question number 20. Mr. Das Gupta dashed himself in the tight spot after questions were dashed about him contesting the election on a BJP ticket, being a dash MP. ठीक है चलो एक बार चेक करके देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फाउंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास है रेज्ड थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एडमिटेड फोर्थ ऑप्शन है नॉमिनेटेड एंड फिफ्थ ऑप्शन है आस्क्ड एंड सिक्स्थ ऑप्शन है एंटर्ड अच्छा पहले हम इसको एक बार चेक करेंगे इसका किस टाइप ऑफ वर्ड्स होगा मिस्टर दासगुप्ता डैश हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट आफ्टर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस पूछने के बाद मिस्टर दासगुप्ता का एक बड़ी टाइट स्पॉट हुआ तो उन्होंने अपने आप को देखा है एक टाइट स्पॉट में मिस्टर दासगुप्ता फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट आफ्टर क्वेश्चंस वेर raised question was raised about him contesting the election on BJP ticket despite being a nominated MP ठीक है so Mr. Dasgupta found himself in a tight spot after questions were raised about him contesting the election on a BJP ticket despite being a nominated MP तो फर्स्ट हो गया फाउंड सेकंड हो गया रेज्ड थर्ड हो गया नॉमिनेटेड फाउंड है गया इसमें हमारा है ए सेकंड में है क्या रेज्ड और थर्ड में हो गया नॉमिनेटेड तो ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन सो आंसर होगा ए तो दीज आर सम 20 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किया नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल डिस्कस सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन सो टिल देन stay blessed and stay safe.